वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 5 कोलिजन करने वाले हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसकी एप्लीकेशन आपको हर चैप्टर में मिलेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको हर चैप्टर में मिलेगा। और आज हम लोग जानेंगे कि कोलिजन में होता क्या है और कोलिजन कितने टाइप्स के होते हैं और इसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज कोलिजन। तो आपका पहला स्लाइड में आप देख रहे हो क्या समझा रहा है collision. तो वो what is collision? Collision is the impact. Collision or impact is the interaction between two bodies having between two bodies between very small duration in which they exert relatively large forces. बहुत कम देर के लिए बहुत लार्ज फोर्स जब दो बॉडीज के ऊपर में लगता है द काइंड ऑफ कोलिजन और इम्पैक्ट होता है on each other. Interaction forces during an impact are created either due to direct contact or a strong repulsive force fields or some connected links. या तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा या तो दूर से निकल जाएगा फोर्सेस के चलते। तो सर ये दूर से जो निकल जाएगा तो तब कोलिजन तो नहीं हो रहा, बट हो रहा है इनडायरेक्ट वे में कोलिजन हो रहा है। एग्जांपल सर, तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड में, when a stream of alpha particle is projected, some of the alpha particles seeing the nucleus divert their way and goes are deflected by some angle, so they are not in direct contact with the nucleus but कुछ दूर से ही निकल जाते हैं। that is indirect collision. the duration of the interaction is very short. जो interaction का duration होता है बहुत short होता है, to permit us only to consider the states of motion just before and after the event, not during the impact. Okay, duration of the impact ranges from 10 to the power minus 23 second for impact between the elementary particles to million of years for impact between the galaxies. The impact we observe in our daily life, such as the between the two balls, last for 10 to the power minus 13 seconds. It is saying कि हमारा जो यूनिवर्स बना वो भी एक कोलिजन और इम्पैक्ट से ही बना हुआ है। उस टाइप ऑफ यूनिवर्स में जो कोलिजन हुए हैं दैट इज हैविंग एन रेंज ऑफ 10 टू द पावर माइनस 23 सेकेंड्स के लिए इम्पैक्ट और कोलिजन हुआ होगा। बट डे टू डे लाइफ में जो हमारा नॉर्मल इवेंट में जो बॉल टकराता है सरफेस से, अगर आप बिलियर्ड्स खेले हो, पूल पे खेले हो बिलियर्ड्स पूल टेबल पे, तो बॉल की जो कोलिजन होती है दैट इज फॉर अराउंड 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड्स। मोस्ट कॉमन वे ऑफ सीइंग द कोलिजन इज प्लेइंग बिलियर्ड्स ऑन द पूल टेबल। हाँ ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। सो एग्जाम्पल डायरेक्ट कोलिजन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? व्हेन ए रबर बॉल स्ट्राइक्स अ सरफेस, एक रबर बॉल जाके सरफेस पे स्ट्राइक करे, इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट with the floor for very short period of time and it changes its velocity. Obviously बात है, अगर बॉल जाता है सरफेस से टकराता है and then again comes back, it changes its direction. वो नीचे जा रहा था फिर ऊपर आने लग गया, और it takes very short period of time to interact with the floor and come up. Okay, there is example of collision where physical contact takes place. इस example में जब रबर बॉल जाके सरफेस से टकराता है, it is a physical example of physical contact. इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, हाँ या ना? Indirect collision किस तरीका? Just right now I told you, give an example of alpha particles by the nucleus gold foil experiment in the Rutherford experiment. It gets deflected by very short, in a very short time. The deflection means a change in the direction of the motion. Deflection means a change in the direction of the motion, okay, and a change in the velocity as well. Change in the velocity as well. In this process, this particle do not touch each other. In indirect collision, the particles do not touch each other. There is no physical contact. But अगर direct collision की बात करें, उसमें physical contact होता है for very short period of time. And the direction of here, the direction of velocity gets changed. Velocity gets changed due to the change in the direction. There, the velocity direction also changes. The velocity speed or the magnitude also changes. Effect of collision होता क्या है? Effect of collision, the momentum and the kinetic energy of the interacting bodies change. टकराने के बाद momentum बदल जाती है क्योंकि body की momentum नीचे थी, अब ऊपर आ गई. Kinetic energy also changes depending कि किस type का collision है. हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. There are varieties of collision. Interacting forces during the collision are so large as compared to the other external forces on either of the bodies. अभी just कल मैंने जब पढ़ाया था
मीन्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें मैंने आपको बताया था कि बॉम्ब एक्सप्लोजन में जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं दैट आर मच लार्ज एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। सो उस पॉइंट के लिए हम लोग इंटरनल फोर्सेस को कंसिडरेशन में लेते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस को छोड़ देते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रही है बातें? तो एक्सटर्नल फोर्सेस को हम लोग लीव कर देते हैं। इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि at that very moment we can apply the conservation of linear momentum. Why? Because external forces का effect बहुत कम है as compared to the internal forces or the forces acting during the collision. collision के वक्त में जो impact force लगता है उसका impact इतना ज्यादा होता है कि हम लोग internal forces के बारे में सोचना, हम लोग external factor के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। Interaction forces during the collision are so large as compared to the other external forces acting on the either of the bodies that the effect of the latter can be neglected. Latter मतलब external forces का neglect किया जा सकता है. Hence, forces involved in a collision are action-reaction pair. Okay, that is the internal forces of the system and एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करता है जब कोलिजन होता है एंड दे आर द इंटरनल फोर्सेस जिसको हम रेफर कर सकते हैं। दस द टोटल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन। तो आज के बाद कोलिजन मतलब एक चीज आप याद रखिएगा, कोलिजन मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोलिजन मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप आंख बंद करके कोलिजन में क्या लगा सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आंख बंद करके लगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोलिजन, तो हम लोग अभी ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का कोलिजन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में दोनों कॉन्टैक्ट बॉडीज इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम लोग दो टाइप के कोलिजन होता है। एक होता है हेड ऑन कोलिजन, एक दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन में कोलिजन in which the particles move along the same straight line before and after collision। तो बॉडीज आया, टकराया, फिर इसी लाइन में चला गया। आया ना? जिस लाइन में आके टकरा रहा है उसी लाइन में, जैसे अगर आप ध्यान दो तो मान लो एक बॉल ऐसे आगे जा रहा था, पीछे से बॉल आया, टकराया, दोनों फिर इसी लाइन में चलते चले गए। एक ही लाइन में अगर बॉडीज का मूवमेंट आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन है, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ये सिंपल है, हेड ऑन कोलिजन इसी को कहते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडीज इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, टकराई, फिर इसी लाइन में चली जाएगी, इट इज ए हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन। नेक्स्ट इज ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है? अगर जिस लाइन ऑफ मोशन में बॉडी आके टकराता है, मान लो आके टकराया, ये लाइन है, या टकराने के बाद फिर अलग लाइन में चला जाए, देन दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। बहुत कॉमन एग्जांपल है जब आप पूल और बिलियर्ड्स गेम खेलते हो, बॉल जाके टकराता है फिर इधर मूव कर जाता है, तो क्या बोल रहा है? कोलिजन इन विच द पार्टिकल्स मूव अलोंग द सेम प्लेन बट एट डिफरेंट एंगल। एक ही प्लेन में मूव कर रहा है बट डिफरेंट एंगल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज डिफाइंड एज ऑब्लिक कोलिजन। टू और टू डायमेंशनल कोलिजन, इसको टू डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं। हाँ या ना? टू डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं क्योंकि एक प्लेन में ये बॉडीज मूव कर रही है। नेक्स्ट ऑब्लिक कोलिजन, ऑन द ऑब्लिक कोलिजन था। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन तो दो था, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी कोलिजन में चेंज होता है उसके बेसिस पे आपके कोलिजन्स को तीन तरीके से बांटा गया है। सामने आपको नाम दिख रहा होगा एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोलिजन। एक है इलास्टिक, बहुत कॉमन नाम है जो आप आने वाले हर समय में सुनते हैं, बहुत ही कॉमन नाम है इलास्टिक कोलिजन, बहुत ही कॉमन नाम है, हम हर बार सुनते हैं। इनइलास्टिक कोलिजन, ये भी कॉमन है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तीन तरीके के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक, तीन तरीके के कोलिजन होते हैं। सर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? जब बॉडीज इंटरैक्ट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन कंजर्व रहता है। इट इज एन आइडियल कोलिजन, ये एक आइडियल कोलिजन का केस है, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं आइडियल कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है। ये बाद में देखेंगे, एक वैल्यू आती है दैट इज ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसमें वैल्यू 1 होता है, देखेंगे।
पहले collision is said to be inelastic. The collision is said to be inelastic if the total kinetic energy before and after the collision remains same. If the total kinetic energy before and after remains the same. Inelastic collision क्या कहता है? A collision is said to be inelastic if total kinetic energy before पहले और after not remains the same. Elastic, inelastic, साफ साफ नाम से ही पता चल रहा है. Elastic कंजर्व रहता है, inelastic कंजर्व नहीं रहता है. अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर पढ़ोगे या आप जानते हो, इलास्टिसिटी मतलब अगर एक बॉडी को एक्सटेंड किया जाए, when forces are removed, it comes back to its original shape. Original shape, very important. उसी नाम पे, उसी के बेसिस पे इसका नाम इलास्टिक कोलिजन दिया गया है. क्यों? क्योंकि जब कोलिजन होता है, इसको समझाऊंगा भी, जब कोलिजन होता है तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, फिर अपने नॉर्मल शेप में वो आके फिर मूव करने लग जाता है. इफ the kinetic energy is used to deform the body and stored in the form of potential energy, and just after the collision during the just after the completion of collision वो bodies अपने natural shape में आ जाता है. मतलब potential energy again changes into kinetic energy and no energy is lost in the form of heat. In this type of collision, the collision is said to be elastic. What is inelastic? अपने natural shape में नहीं आ पाएगा. Some of the kinetic energy will be lost in deforming the body, and some of the kinetic energy will be also lost to the surrounding in the form of heat. That is inelastic collision. If kinetic energy पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, and after does not remain same, वो चेंज हो जाता है. क्या हो जाता है सर काइनेटिक एनर्जी के साथ? तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी को डिफॉर्म करने में इस्तेमाल होता है, फिर बॉडी अपने नेचुरल शेप में नहीं आ पाता है. Once it does not come back into its natural shape, means some part of kinetic energy is lost in the deforming the body or is stored in the body in the form of potential energy. व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन? ये एक अलग वेराइटी का कोलिजन है जिसमें बॉडीज कोलिजन के बाद साथ साथ चिपक के जाते हैं. जैसे आप एक मट्टी का टुकड़ा लो, मट्टी का कीचड़ का मींस मट्टी गीला मिट्टी लो और एक बॉल उड़ रहा है, उस बॉल पे मारो, बॉल के साथ वो चिपक के अगर मूव करने लग जाए, देन इट इज perfectly inelastic collision. A collision in which interacting particles get stick together, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में चिपक के मूव करने लग जाए, है ना. आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. क्या कहते हैं उसको? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन लॉस इन द एनर्जी इज मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी जो लॉस होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है. So it is an ideal collision. It is perfectly inelastic of type of collision and middle one is elastic collision. ज्यादातर हमको सिलेबस में ये दोनों पढ़ने हैं, ये भी पढ़ना है, बट ज्यादा क्वेश्चंस आपको इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक से मिलते हैं आने वाले चैप्टर्स में भी. तो आपको एक चीज तो याद रखना है, कोलिजन मतलब क्या होता है. एक चीज आपको याद रखना है, कोलिजन मतलब नथिंग बट कोलिजन इस पूरे अभी तक के स्लाइड्स का सारांश यही है कि आपको एक चीज तो पता होना चाहिए अप्लाई करने के लिए. तुरंत अप्लाई व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर दीजिए. देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोलिजन एंड अप्लाई द लॉजिक. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कोलिजन एंड अप्लाई पहला ई फॉर्मूला जो हम लोग सीखेंगे, इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं. एंड देन अप्लाई एनर्जी लॉ, एनर्जी concept of the type of collision, energy concept based on the type of collision, based on the type of collision. हाँ या ना? तो ये तरीका होता है सर. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले ये तो लगना ही लगना है, दिस हैज टू बी अप्लाइड. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन ऑल द टाइप्स ऑफ कोलिजन. सेकंड, आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोलिजन एंड बेस्ड ऑन दैट एक ई का फॉर्मूला आने वाला है. एंड किस कौन से टाइप का एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोलिजन. चलिए आगे बढ़ते हैं.
प्रोसेस ऑफ कोलिजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। पहले थोड़ा समझ लेते कि कोलिजन के दौरान होता क्या है एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या। To understand the mechanism of collision, let us consider two balls A and B. एक बॉल A है, एक बॉल B है। Masses उसके MA और MB है, okay, are moving with the velocities UA and UB. UA आगे जा रहा है, UB भी आगे जा रहा है। UA has to be greater in order to collide with the UB. अगर आगे कोई बॉडी जा रहा है, आप जब तक तेजी से नहीं जाओगे तो उससे कोलिजन कैसे होगा? UA has to be greater with respect to UB. In the same direction as shown, velocity of UA is larger, obviously I told you, and UB, so that ball A hits the ball B. During the impact, both the bodies push each other, दोनों एक दूसरे को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, push each other, and they got deformed. यहाँ देखो डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ डिफॉर्मेशन हो रहा है। I told you, थोड़ी देर के लिए डिफॉर्मेशन होता है, till the deformation reaches a maximum value. मैक्सिमम डिफॉर्म होगा, फिर टाइप ऑफ कोलिजन के बेस पे वो बॉडी अपने नेचुरल शेप में आने की कोशिश करेगा। एंड देन दे ट्राई टू रिगेन देयर नेचुरल शेप, ओरिजिनल शेप, ड्यू टू इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। अगर बॉडी इलास्टिक है तो अपने नेचुरल शेप में आ जाएगा। अगर बॉडी इनइलास्टिक है, जैसे रियल लाइफ में जब ट्रक और कार का होता है तो वो लोग इलास्टिक बॉडीज नहीं होता, आयरन इज नॉट सो इलास्टिक, तो बॉडीज अपने शेप में नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल फॉर्म्ड। तो ये क्या है? डिफॉर्मेशन। फिर वो अपने नेचुरल शेप में आके वेलोसिटीज यूए यूबी था, वेलोसिटीज यूबी वीवी बन जाता है। वेलोसिटी यूए था और वेलोसिटी वीए बन गया, और फिर टकराने के बाद फिर दूसरे डिफरेंट स्पीड से निकल जाते हैं। अब ये पीरियड जो था जब तक कोलिजन के बाद डिफॉर्मेशन हो रहा था, दैट पीरियड इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन पीरियड। और जब अपने डिफॉर्म्ड शेप से नेचुरल शेप में जाना चाह रहा था तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन पीरियड। रेस्टिट्यूशन, इसीलिए एक टर्म आने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा? ई से डिनोट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसको ई से डिनोट करते हैं, हाँ या ना? इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्म, तो रेस्टिट्यूशन पीरियड में एक टर्म आने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कुछ। चलिए देखते हैं। डिफॉर्मेशन पीरियड एंड रेस्टिट्यूशन पीरियड। डिफॉर्मेशन पीरियड क्या? द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच डिफॉर्मेशन टेक प्लेस, एज द जिस दौरान डिफॉर्मेशन होती है। जस्ट अ सेकेंड, या now the time duration during which deformation take place, during the period of deformation, due to push applied by the balls on each other, during the period of deformation, speed of ball A decreases. A ball कौन सा था? A बॉल पीछे से जो आके हिट किया उसकी स्पीड घटेगी एंड B की स्पीड बढ़ेगी। And at the end of deformation period, when the deformation is maximum, both the ball move with the same velocity, say it is u. एक पीरियड आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगा, टकरा के कम, फिर अलग स्पीड से अलग होना स्टार्ट होगा। देयर आफ्टर द बॉल्स विल आइदर मूव टुगेदर विद द वेलोसिटी और फॉलो द पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। या तो दोनों साथ में चलने लग जाएंगे या तो वो फॉलो द पीरियड ऑफ रेस्टिट्यूशन। जब दोनों साथ में अगर चलने लग जाए, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। वो कैसा कोलिजन होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। रेस्टिट्यूशन पीरियड में क्या होता है? द टाइम इंटरवल इन विच बॉडी ट्राइज टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। During the period of restitution, due to push applied by the balls on each other, the speed of the ball A decreases and further that of ball increases, which we have already seen, increases further till they separate from each other. अब A का डिक्रीज होते होते और B का इंक्रीज हो रहा है, कब तक? जब तक दोनों सेपरेट ना हो जाए इन दूसरों से। Let us denote the velocities A and after the impact, VA and VB. So what we have seen, क्या होता है? We can show that one कि अगर एक बॉडी है A और एक बॉडी है B, it was coming with UA and it is coming with UB, it was going with UB। एक कोलिजन का इम्पैक्ट होता है, दोनों का कोलिजन का इम्पैक्ट होगा। ये A है, ये B है सर, कोलिजन ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन गेट्स डिफॉर्म्ड। बस आपको इतना समझना, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, हाँ या ना? गेट डिफॉर्म्ड
उसके बाद बॉडीज उसके बाद बॉडीज फिर से ए एंड बी अलग अलग वेलोसिटी वी ए एंड वी बी से चले जाते हैं। टकराने से पहले यूए यूबी, टकराने के वक्त में कोलिजन होता है, डिफॉर्मेशन होता है, उस समय इसकी स्पीड बदल रही होती है, इसकी भी स्पीड बदल रही होती है, और फिर दोनों सेपरेट होके चला जाता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कोलिजन। अगर वो इलास्टिक कोलिजन है तो वी ए वी बी से जाएगा और अगर वो इनइलास्टिक कोलिजन है तब भी डिफरेंट वेलोसिटी से जाएगा, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जितना था उतना रिगेन कर लेगा, बट इनइलास्टिक कोलिजन में जितना काइनेटिक एनर्जी था कुछ काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट इन डिफॉर्मिंग द बॉडी। हाँ या ना? तो काइंड ऑफ ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। सो क्या क्या चीज हम लोग लगा सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग द इम्पैक्ट तो लगा ही सकते हैं। हाँ या ना? तो सर अगर बॉडी लास्ट केस देखा जाए तो यूए से जा रहा था, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू ड्यूरिंग द कोलिजन एम ए प्लस एम बी इंटू यू। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ अगर तुम देखोगे तो कुछ नहीं करना है, बस अगर हम लगाए अगर बॉडी में कोलिजन का, ध्यान दो उतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है आपको। अगर बॉडी जा रहा है ए, अगर ये जा रहा था यूए से, अगर बॉडी जा रहा है बी जिससे जा रहा है यूबी से, कोलिजन के दौरान छोड़ दो, कोलिजन के बाद की बात करो, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर कोलिजन क्या होता है? आफ्टर कोलिजन बताइए। मान लेते ये वीए से जाने लग गया और ये वीबी से जाने लग गया, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं बोलिए बच्चा? सर मास ऑफ ए इंटू यू ए प्लस मास ऑफ बी इंटू यू बी, हाँ या ना, इज इक्वल टू सर मास ऑफ वी बी ए वी ए वी ए, मास ऑफ ए वी ए प्लस मास ऑफ बी वी बी। तो ये आपको लगाने आना चाहिए। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। दिस इज बिफोर कोलिजन। बस ड्यूरिंग द कोलिजन इंपैक्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, वहां से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आने वाला है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये आपको इससे ज्यादा इंपल्स और रिकवरी और डिफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दैट अगर एक बॉडी, अभी मैंने बताया एक बॉडी अगर ए है वो यूए से जा रहा है, अगर एक बॉडी बी है जो यूबी से जा रही है, तो ये बॉडी नंबर 1 मान लीजिए, ये बॉडी नंबर 2 है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? तो बॉडी नंबर ए वीए से जाएगा, बॉडी नंबर बी वीबी से जाएगा, एंड वेलोसिटी ऑफ बी विल बी ग्रेटर बिकॉज दोनों बॉडी को सेपरेट आउट होना है। हाँ है ना? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों की सेपरेट होने की वेलोसिटी, दैट इज, ये बॉडी नंबर कौन सा है? 1 एंड 2। ये 1 था, B2 था, तो V2 माइनस V1 वेक्टर माइनस डिवाइडेड बाय U1 माइनस U2 वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ए बॉडी बी को अप्रोच कर रहा था, टकराने के बाद बी बॉडी तेजी से निकल जाएगा, ए बॉडी पीछे रह जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये था। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u ऑफ 1 माइनस u ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1। तो ये वेलोसिटी, ये जो E का फॉर्मूला है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसी का मैग्नीट्यूड ले लिया जाता है, इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। सो ई इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो डिफरेंट डिफरेंट कोलिजन का ई का वैल्यू अलग अलग होता है। इलास्टिक के केस में आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 1 होता है, इनइलास्टिक के केस में 0 से 1 होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में 0 होता है। वो हम लोग आगे देखते हैं। चलिए
बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज राइट इट इन योर कॉपी। नाउ सबसे पहले हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में देखिए क्या हो रहा है। द हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच द कोलाइडिंग बॉडीज move along the same straight line path before and after the collision. They follow the same line. टकराने के बाद फिर उसी लाइन में आगे मूव करते हैं, कोई डिफरेंट लाइन नहीं होता है। हाँ या ना, कोई डिफरेंट लाइन नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्या बोर्ड है ये। अगर आप देखोगे, चलिए क्या कह रहा है, एक बॉडी ए है जो m1 वेलोसिटी m1 मास का है, एक बॉडी बी है जो m2 u1 से जा रहा था, u2 से जा रहा था ड्यूरिंग द कोलिजन, उसके बाद v1 और v2 से जा रहा है। तो सर इसकी अगर मैं इलास्टिक ई कोएफिशिएंट ऑफ ई लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा सर, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ऊपर में 2 नीचे में 1 से स्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसमें क्या लगता है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं यहां से, ये इतना दूर आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू mv1। फिर इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी नंबर 1 बिफोर कोलिजन, बॉडी नंबर ऑफ 2 आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2। हाँ या ना, दो इक्वेशंस आ रहे हैं, आप फॉर्मूला लाना चाहोगे तो फॉर्मूला ला सकते हो। और ई की वैल्यू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 1 होती है। तो इलास्टिक कोलिजन में अगर आप लिखना चाहो ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप याद रखना ई की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू 1 होती है, बहुत अच्छे से याद रखना। इलास्टिक इज आइडियल, ई की वैल्यू 1 होती है। इलास्टिक इज आइडियल, ई की वैल्यू 1 होती है, और ई की वैल्यू 1 होती है, ई की वैल्यू 1 होती है। आपको कोई फॉर्मूला यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एप्लीकेशन ऑफ ई, नथिंग एल्स। चलिए स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है इलास्टिक कोलिजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ द टू बॉडीज विच आर इंटरैक्टिंग ऑफ इक्वल मासेस, अगर दोनों बॉडीज जो इंटरैक्ट कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन में, अगर दोनों इक्वल मास का है, यानी m1 m2 is equal to m, then velocities get interchanged। बहुत इंपॉर्टेंट है, velocity gets interchanged, velocity gets interchanged, velocities get interchanged। अगर दोनों बॉडी जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उनका मास सेम है, देन वेलोसिटी गेट इंटरचेंज। ओके, नेक्स्ट case 2, if the two bodies of equal masses and second body is at rest, if the two bodies are of equal masses, दोनों का मास सेम है, यहां भी मास सेम है, एंड सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट। अगर एक बॉडी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी नंबर ए यू वेलोसिटी से आ रहा है, इसकी मास भी m है, और एक बॉडी नंबर बी है जो कि रेस्ट पे है। जब वो जाके टकराएगा और इसकी भी मास m है, तो टकराने के बाद वेलोसिटीज क्या हो जाता है, इंटरचेंज ही होगी। तो क्या हो जाएगा जरा बोलिए सर, a का वेलोसिटी 0 हो जाएगा m मास का, एंड b की वेलोसिटी के पास क्या आ जाएगा सर, u आ जाएगा, सर सेम मास का था। तो m1 इज इक्वल टू m2, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 इज 0 एंड v1, तो टकराने के बाद v1 की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v2 की वेलोसिटी u हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, टकराने के बाद यहां भी वेलोसिटीज इंटरचेंज ही हो रहा है। अ काइंड ऑफ स्पेशल केस ऑफ दिस वन इज, ये बॉडी रुक जाएगा, दूसरा बॉडी चलने लग जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी गेटिंग इंटरचेंज्ड। थर्ड केस क्या है, इफ द मास ऑफ वन बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मास ऑफ अदर, अगर एक बॉडी का मास बहुत हैवी है और दूसरा बॉडी का मास m है, if m1 is much greater than m2 and u2 जो है इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये किस वेलोसिटी से आ रहा है, v1 is u1, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा था, टकराने के बाद ये बड़ा बॉडी तो अपने वही वेलोसिटी से जाते रहेगा,
बस छोटा बॉडी का वेलोसिटी जो हो जाएगा m मास वाले का, वो 2 टाइम्स ऑफ u1 हो जाएगा। बड़ा बॉडी काइंड ऑफ ट्रक, ट्रक चल रहा है, साइकिल वाले को मारेगा, ट्रक तो चलता रह जाएगा, साइकिल वाले को दोगुना स्पीड मिलेगा अगर वो रुका हुआ है। इफ तो m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड u2 इज 0, कोलिजन के बाद v1 उसका u1 तो चलता ही रहेगा, बट दूसरे वाले बॉडीज को डबल वेलोसिटी मिलता है। व्हेन a heavy body A collides with against a light body at rest, body A should keep on moving with the same velocity, whereas body B gets the velocity double of that of A। अगर m2 बड़ा है, अब अगर सेकेंड केस देखें u2 इज 0 और उसका वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगा, और ये देखो अगर ये दूसरा केस क्या बोल रहा है, मान लो एक बहुत बड़ा बॉडी है, ये m2 है, ये रुका हुआ था, और एक छोटी सी बॉडी m मास का ये आ रहा है u1 से, तो ये आके टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये बड़ा वाला वेलोसिटी अगर मैं बात करूं, अगर एक बहुत बड़ा बॉडी है, ये m2 है, इसकी u2 क्या है, 0 है, मान लो ये रुका हुआ है। अब एक छोटी बॉडी आ रही है m1 का, वो u1 से आके टकराएगा, तो क्या बड़े वाले बॉडी पे इंपैक्ट कर पाएगा, नहीं, वो चाटा खा के लौट जाएगा, वो चाटा ये तो यहीं रह जाएगा, u2 इज इक्वल टू 0, वो u1 टकराने के बाद u1 वेलोसिटी से लौटना चालू कर देगा, वो टकराने के बाद u1 वेलोसिटी से लौटना, टकरा के सुंग करके लौट जाएगा, और बड़े वाले बॉडी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये भी दिस वाज आल्सो द केस ऑफ इसी का। तो याद रखिएगा, अगर एक बहुत बड़ा बॉडी आ रहा है, वो अगर आके टकराता है तो डबल वेलोसिटी देके जाता है, वो अपना नॉर्मल स्पीड से जाते रहता है। जब दूसरा क्या बोर्ड है कि अगर छोटा बॉडी आ रहा है, वो बड़े बॉडी से टकराता है, तो वो u1 वेलोसिटी से लौटना शुरू कर देता है, हाँ या ना। और दूसरा बॉडी यहाँ पे क्या था, u1 से अगर जा रहा है तो वो तो u1 से ही जाता रहेगा, ये डबल हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या है, अगर ये u1 वेलोसिटी से आके इस बॉडी से टकराएगा, तो वो तो अपना रेस्ट में ही रहेगा, ये बॉडी u1 से लौटना चालू कर देगा, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में हम लोग कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ही लगेगा, कोलिजन का है भाई प्रिंसिपल, बोल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो कोलिजन के नाम पे लगेगा। क्यों, एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट इम्पैक्टिंग एट दैट मोमेंट, इंटरनल फोर्सेस का जो आपस में टकराने वाला इम्पैक्ट फोर्स है, जिसको इम्पल्स फोर्स भी बोल सकते हैं, इम्पल्सिव फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फोर्सेज एट दैट मोमेंट। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब अगर हम दूसरा फॉर्मूला किसकी लगाएंगे, ई का लगाएंगे, मैं पहले भी बोला हूं आपको दो फॉर्मूला लगाना है, बिकॉज व्हाट, बिकॉज आपको कोलिजन से पहले मास 1 u1 पता रहेगा, मास 2 u2 पता रहेगा, आपको निकालना क्या है, टकराने के बाद m1 का ये v1 निकालना है जो हरा पेन से लिखा हुआ है, और क्या निकालना है, v2 निकालना है, किसका, मासेस का, क्या निकालना है, m2 एंड v1 और v2 निकालना है। तो आपका पहला क्या होगा प्रिंसिपल, फर्स्ट स्टेप 1 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा स्टेप 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 1 कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, स्टेप 2 ई के फॉर्मूला, ई फॉर्मूला आया ना, ई का फॉर्मूला। सो एंड काइनेटिक एनर्जी, आप अगर ये दोनों से नहीं सॉल्व हो रहा, देन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, या मूविंग एंड, इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि v1 की वैल्यू क्या होगी, v2 की वैल्यू क्या होगी, हम लोग सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। Now head on perfectly inelastic collision. When perfectly elastic collision is the most easiest one, यहाँ पे क्या लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें क्या होता है सर, इसमें बॉडी अगर m1 है वो u1 से जा रही है, प्लस, अगर प्लस नहीं बोलो, जाके वो किससे टकरा रही है, m2 से, जो किससे जा रही थी, u2 से। टकराने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी चिपक के जाएंगे, दोनों बॉडी चिपक के सर m1 एंड m2 दोनों कॉमन वेलोसिटी v से जाएंगे।
टकराने के बाद दोनों कॉमन वेलोसिटी v से जाएंगे, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। और इलास्टिक कोलिजन का e क्या होता है इन परफेक्टली इलास्टिक का? e की वैल्यू 0 होती है। इन इलास्टिक कोलिजन का सर e की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 होता है, 1 और 0 के बीच में होता है। e की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में होता है। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? आई होप कि तीनों कंडीशन का आपको समझ में आ रहा है। ई की वैल्यू देखो यहाँ 0 दी हुई है। जरा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखना चालू कर देते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Two balls each of mass 5 kg are moving in opposite direction with equal speed 5 meter per second collide head on with each other. Find out the final velocities of the ball if the collision is perfectly inelastic. Very easy. तो ध्यान दीजिए, मेरे पास एक बॉल था m1, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ m1 का मास दिया हुआ मेरे को 5 kg का बॉल है। टू बॉल्स ईच ऑफ 5 kg आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये भी 5 kg का है और ये दोनों सर 5 मीटर पर सेकेंड से और इधर 5 मीटर पर सेकेंड से आर इन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कोलाइड हेड ऑन। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता क्या होगी और इसकी भी वेलोसिटी मुझे नहीं पता क्या होगी, वो दोनों निकालना है। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं दोनों की वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। ये इलास्टिक कोलिजन है। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे सर? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाते हैं तो क्या होगा सर? सर 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -5। अगर एक स्पीड को हम पॉजिटिव माने तो दूसरा मोमेंटम की बात हो रहा है तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, -5 करना पड़ेगा इज इक्वल टू Pi must be equal to P final 5 into V1 plus 5 into V2. Equation number 1 5 5 5 5 यानी इक्वेशन नंबर 1 अभी मत बनाइए। इक्वेशन नंबर 1 हम लिख सकते हैं सर V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, अगर सबसे 5 हट गया तो 5 माइनस 5, ये तो 0 आ रहा है। दोनों मिलके इक्वेशन नंबर 1 0। दूसरा सर क्या लगा दे? फॉर्मूला ऑफ ई। ई की वैल्यू क्या होती है कोलिजन में? इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 होती है। लगाते हैं, चलिए ई की वैल्यू 1। सर ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई वेक्टर में u1 5 माइनस -5, क्योंकि सब वेक्टर में लिखना था, उसका मैग्नीट्यूड लेना था। तो और ई की वैल्यू कितनी होती है सर? ई की वैल्यू 1 होती है, यानी 5 माइनस 5 10, यानी v2 minus v1 is equal to 10 or can be written as what sir? minus v1 plus v2 is equal to 10। दोनों मिलके 0 भी होना चाहिए, दोनों मिलके 10। तो v1 की वैल्यू रख दीजिए माइनस v2 या v2 की वैल्यू माइनस v1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। और साफ साफ पता चल रहा है कि अगर दोनों की मास सेम है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जानी चाहिए था, वो शॉर्ट ट्रिक है। बट यहाँ पे देखो, अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी? अगर यहाँ से उठ के रखते हैं v2 इज इक्वल टू v1, क्या हो जाएगा? v2 की वैल्यू v1 के बराबर हो जाएगी। हाँ, v1 की वैल्यू माइनस v2, तो यानी v2 की वैल्यू माइनस v1, तो इम्प्लाइज पुटिंग वैल्यू ऑफ, यहाँ से अगर हम देखें, यहां से हम v2 की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस v1, उसको उठा के यहां डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए? माइनस v1 के बदले v2 प्लस v2 इज इक्वल टू 10, सो इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू 5 एंड v1 इज इक्वल टू -5। हाँ या ना? तो ऑब्वियस सी बात है, ये वेलोसिटीज हमें आ गई है डायरेक्शन के साथ। आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बना सकते थे, जो हमने स्पेशल केस किया था। शॉर्ट ट्रिक से अगर मासेस सेम रहता है, अगर मासेस सेम रहती है, 5 kg था, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और ये जो 5 kg था, ये 5 kg 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था। सिंस द मास आर सेम, सो टकराने के बाद इनका वेलोसिटीज क्या हो जाना चाहिए था?
इनका वेलोसिटीज क्या हो जाना चाहिए था, इंटरचेंज हो जाना चाहिए था। तो ये वाले 5 kg के पास v1 वेलोसिटी में -5 आ जाता और ये वाले के पास +5 चला जाता। सो वेलोसिटीज आर गेटिंग इंटरचेंज्ड। हमने प्रूव भी कर दिया और यहाँ डायरेक्टली भी कर लिया। वेलोसिटीज गेट्स इंटरचेंज्ड, गेट्स इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज्ड। हाँ या ना, बातें समझ में आ रही है? यहाँ भी ये 5 kg का ही था। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, a simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob. A simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of 1 kg. It is struck by a bullet of 10 to the power minus 2 kg moving with the speed of इतना. The bullet gets embedded with the bob. Obtain the, ये हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था और आज फिर करेंगे। तो एक वुडन ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है और यहाँ पे क्या आके हिट कर रहा है बच्चा, एक बुलेट आके हिट करने वाला। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 2 kg, 10 टू द पावर माइनस 2 kg का बुलेट, यानी 10 ग्राम का बुलेट विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 200 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये हिट कर रहा है किसको, वुडन ब्लॉक को, जो कि 1 kg का है। तो पूछ रहा है हिट करने के बाद उसके अंदर इम्बेड हो जाता है, इसके अंदर इम्बेड हो जाता है और ये ऐसे ऐसे जाके यहाँ जाके कहीं हाइट पे चला जाएगा। 1 kg विथ व्हाट, बुलेट के साथ, इसके अंदर बुलेट रहे। तो ये हाइट आपसे पूछ रहा है, ये हाइट आपसे पूछ रहा है कि कितना ऊपर जाएगा। सबसे पहले ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग क्या लगा सकते हैं, ड्यूरिंग कोलिजन हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर लगाते हैं तो क्या होगा बोलो सर। m1 इसकी मास कितनी है, 10 टू द पावर -2 इंटू v1, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इजिकल टू, सर ये 1 kg में अगर हम लोग 10 ग्राम डालेंगे तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, हम लिख सकते हैं 1 इंटू वी डैश। तो वी डैश कितने के बराबर आ जाएगा सर, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यानी उसको वेलोसिटी जो मिलेगा वो 2 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग कह सकते हैं कि सर यू आई प्लस वी आई, या डायरेक्टली कह सकते हैं कि v जो आता है वो √2gh आता है। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g, यानी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, सो इट इज 0.2 मीटर, इज 0.2 मीटर, यानी ये बॉडी कितना ऊपर जाएगा, 0.2 मीटर ऊपर जाएगा। हाँ या ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास अपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी किया था। चलिए नेक्स्ट, नाउ अनदर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स डायरेक्टली विद अनदर बॉल ऑफ मास 3 kg मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 2/3, सो इट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक है ये कोलिजन। तो चलिए बस सिंपली ड्रॉ करिए कि क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जो मास 2 kg का है और मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कोलाइड करता है डायरेक्टली विथ अनदर बॉल ऑफ 3 kg, एक 3 kg का बॉल है उससे डायरेक्ट कोलाइड करता है जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा है तो उससे जाके टकराएगा ही टकराएगा। टकराने के बाद क्या बोल रहा है कि वेलोसिटीज क्या होगा, तो सर 2 kg रहने देते हैं, 3 kg रहने देते हैं और उनकी स्पीड हम क्या मान लेते हैं कोलिजन के बाद, मान लेते हैं वो v1 है और वो v2 है। तो पहला क्या लग सकता है, जैसे ही कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लग ही सकता है सर। कंजर्वेशन ऑफ अगर लीनियर मोमेंटम हम लगाते हैं क्या बोल सकते हैं सर, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू सर 2 इंटू v1 प्लस 3 इंटू v2। तो अगर हम लिखना चाहें तो 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 2 5 10 प्लस 12, 22 इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं।
सर दूसरा इक्वेशन मेरा कहां से आ जाएगा? तो दूसरा इक्वेशन मेरा कहां से आ जाएगा? फ्रॉम ई। सर ई दिया हुआ है, ई की वैल्यू 2/3 है, तो ई की वैल्यू हम लगा सकते हैं। सर ई की वैल्यू क्या होती है? ई इज इक्वल टू V2 माइनस, अगर ई की बात करें तो ई इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई U1 माइनस U2 इंप्लाइज 2/3 इज इक्वल टू V2 कितना है? तो V2 ही है, माइनस V1 ही है, माइनस U1 कितना है? 5 माइनस 4 इंप्लाइज माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें 3v माइनस 3v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 22, 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 22। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है? माइनस 3 प्लस 3, माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये तो चला जाएगा। सर 5v1 इज इक्वल टू 20 इंप्लाइज v1 इज इक्वल टू 4। अगर v1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है तो v2 की वैल्यू आप डाल दो किसी में, तो v2 अगर देखोगे तो यहां से v2 इज इक्वल टू 2/3 प्लस v1, v2 इज इक्वल टू 2/3 प्लस v1 implies 2/3 plus 4। I think 3 रहने दो, 2 plus 12, I think 14/3 आ जाएगा। So we have got the values of V1 and V2। V2 कितना आ रहा है? 14/3 meter per second is the answer। So what did we do? What we did is that we applied conservation of linear momentum and then applying the equation of E। E और conservation of linear momentum पे हमने सारा कुछ कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A body of mass 2 kg, a body of 2 kg mass having velocity 3 meter per second collides with a body of 1 kg mass moving with a velocity of 4 meter in the opposite direction। After collision both the bodies stick together and move। Okay, very easy, ये दोनों तो बहुत easy है। Move with a common velocity। एक body है जो कि 2 kg का है, moving with a velocity of 3 meter per second, collides with another body of 1 kg mass moving with a velocity of 4 but in opposite direction 4 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद दोनों चिपक जाते हैं और चिपक करके एक कॉमन वेलोसिटी से जा रहे होते हैं। तो ये 2 kg है और ये 1 kg है, मुझे नहीं पता बट ये किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? v वेलोसिटी से जा रहे हैं, हाँ है ना? तो व्हाट कैन वी राइट? सर बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम क्या बोल सकते हैं? सर 2 into 3 plus 1 into 4 is equal to सर 2 plus 1 into v। तो यहां से मेरा v क्या आ जाएगा? सर 6 plus 4 10/3 मीटर पर सेकेंड, 10/3 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? बातें समझ में आपको आ रही होंगी। सो वेलोसिटी ये तो बहुत इजी, आसानी से जब इन्हें, ये कौन सा टाइप का कोलिजन है बच्चा? इट इज perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, inelastic, perfectly inelastic collision, हाँ या ना? perfectly inelastic collision। चलिए तो फिर और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इसके लिए इतना ही रहने देते, और भी कोलिजन्स के प्रैक्टिस करने के बाद वे स्पेशल बाउंसिंग ऑफ द बॉल एंड हाई टेक इन, वो सब सारे वेराइटीज भी करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर करते हैं नेक्स्ट में। चलिए बाय, टेक केयर।